As our topic is continued with the before, now it is our topic number 8 for today, that is excitation of the optical branch. We have discussed about the dispersion curve before and discussed for the optical branch of the dispersion curve. We will discuss about the excitation of the optical branch, or you can say the infrared absorption in the ionic crystal. Here you can note that infrared are electromagnetic radiations and have frequency lower than the frequency in the visible range. Electromagnetic radiations are those which require any medium for their propagation. X-rays have the frequency 10 raised to power 16 Hz. Ultraviolet radiations have nearly 10 raised to power 16 Hz. Visible range is 10 raised to power 13 Hz. And ultraviolet is 10 raised to power 16 Hz. Visible region is 10 raised to power 13 Hz. Infrared region is equal to 10 raised to power 13 Hz, and the microwaves are nearly equal to 10 raised to power 10 Hz. The optical branch can respond to a force that distinguishes between the two types of the charged ions, as we have discussed before for the dispersion curve of the two diatomic lattice vibrations. For example, the response of the ionic crystal to the electromagnetic radiation. Since the ions are oppositely charged, you know that ions are oppositely charged, one can be positive and one can be negative. The oscillatory electric field will force adjacent ions in opposite directions as required for vibration in the optical branch. You have seen the optical branch. The fundamental difference between the acoustical or the mechanical and the electromagnetic excitation of the lattice is that acoustical excitations are the lattice vibrations or the material vibrations. The fundamental difference between the acoustical means that the mechanical electromagnetic excitation is that the lattice is that acoustical excitation are the lattice vibrations or the material vibrations. Yeah, it means that materials are required for the mechanical waves. Material or a medium is required. When optical vibrations or when optical radiations are allowed to fall on the diatomic lattice material, then optical branch will excite. So the dispersion relation is for monatomic acoustical branch or wave, and it is for wave vector k and frequency omega. You have seen that in the monatomic lattice vibration and the diatomic lattice vibration. From here, omega is directly proportional to k. Substituting the value or proportionality, we get omega is equal to Vs into k, where Vs is the sound wave velocity and k is the incident wave vector. And when the optical branch is to excite, then omega is equal to Cmk, where Cm is the velocity of the light in the medium. But for the electromagnetic wave, there exists independence of lattice with the own dispersion law. It means that the optical branch for electromagnetic wave, there will be its own dispersion law. In order for the lattice to respond for an electromagnetic excitation, the lattice vibration that is stimulated must have the same wavelength as well as the same frequency. अगर आप चाहते हैं कि आपका मीडियम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करे, तो लैटिस वाइब्रेशन जो है उनकी जो वेवलेंथ है और जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो जो है सेम फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ उनकी एक जैसी होनी चाहिए. If the dispersion relation differs, then only those vibration will which satisfy both law will be excited. यानी जो dispersion relation आप चाहते हैं कि अगर dispersion फर्क करती है, different है dispersion relation vibrations के लिए, तो वो जो है vibrations जो हैं satisfy होंगी, जो कि जो है इस लॉ को ओबे करेंगी. मतलब क्या, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में से जो मैच कर रही होंगी वो वाली रिलेशन आपके पास आ जाएगी, जो मैच नहीं कर रही होंगी वो उसमें से ओमिट हो जाएंगी. बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ सी द वेव because the high value of c means the speed of light, the curve intersects at essentially k is equal to 0. We have drawn in the dispersion curve. Therefore, absorption should occur only at k is equal to 0. It means that there will be only absorption at the k is equal to 0. When optical branch is to
by the optical radiation their acoustical will automatically excite which match to the acoustical branch. अगर आप चाह रहे हैं कि ऑप्टिकल ब्रांच को एक्साइट करें, लेकिन क्योंकि जहां पर ऑप्टिकल ब्रांच होती है वहीं पर अकॉस्टिकल डायटोमिक के केस में आएगी, तो अगर आप ऑप्टिकल को एक्साइट करेंगे तो अकॉस्टिकल जो है वो ऑटोमेटिकली एक्साइट हो जाएगी। तो आप ये देखिए नीचे फिगर में आपने वेव वेक्टर के जो है वो हॉरिजॉन्टल लिया है और मेगा फ्रिक्वेंसी आपने जो है वो वर्टिकल पर ली है। तो अब जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच के लिए ड्रॉ किया, एक आपकी ब्रांच आ गई ओमेगा प्लस की ऑप्टिकल ब्रांच के लिए, उसके साथ ही कॉस्टिकल ब्रांच नीचे ओमेगा माइनस के साथ आ गई, और ये थोड़ा सा जो है दरमियान में ओमेगा का डिफरेंस है ऑप्टिकल और एक्चुअल जो आपने वैल्यूज ली है उनके दरमियान में। आप उसमें देख रहे हो इसमें कंसाइड नहीं कर रही, कंसाइड नहीं कर रही, तो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए जो है वो फर्क आ रही है, मतलब जो है वो और डिफरेंस आ रहा है उसके लिए, और इसी तरह ऑप्टिकल ब्रांच के लिए भी फर्क आ रहा है क्योंकि आपने एक्साइट करवाया ऑप्टिकल को, एकॉस्टिकल अपने आप ही उसके साथ जो एक्साइट होगी। फॉर ऑप्टिकल ब्रांच एट k इज इक्वल टू 0, मेगा प्लस की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट की थी, मेगा प्लस इज इक्वल टू √2 बीटा इंटू 1 ओवर स्मॉल m प्लस 1 ओवर कैपिटल M, ये आपने डायटोमिक के लिए कैलकुलेट की थी। अगर आप कह रहे हैं k इज इक्वल टू 0 के लिए मेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के लिए ले रहे हैं ना, तो 2 बीटा इंटू 1 ओवर m प्लस 1 ओवर m, दैट इज द इक्वेशन A. Let we are dealing with the diatomic linear lattice of oppositely charged atoms extending along the x direction. Suppose करें कि आप जो है diatomic lattice में linear lattice consider कर रहे हैं जिनके एटम जो है वो oppositely charged हैं, x direction में पड़े हुए हैं, and light is incident in a direction perpendicular to the atomic chain in such a way that the electric vector of the wave oscillate by x. फिगर में देख रहे हो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लीनियर लिया है जिसमें जो है वो ऑपोजिट एटम्स पड़े हुए हैं, एक कैपिटल एम लिया, एक स्मॉल एम, मतलब एक कैपिटल एम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, स्मॉल एम जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने उसके ऊपर फॉल करवाई है, दो एटम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ए है, तो जो दो एक जैसे के दरमियान में होगा वो 2a होगा, और क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप उसको मूव करवाने हैं तो वाइब्रेशन जो होगी वो आप किससे शो करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह की शो करोगे कि एक तरफ को मूव करें आपके एटम। व्हेन टू वेव आर रिप्रेजेंट व्हेन द टू वेव्स आर प्रेजेंट देन द टू इक्वेशंस फॉर देम इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि दो एटम्स लिए हुए हैं तो दो इक्वेशंस होंगी, लेकिन अगर आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एब्सेंस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब रेस्ट के ऊपर है, तो आपके पास इक्वेशन है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 बीटा बी कॉस के ए माइनस 2 बीटा ए, दैट इज इक्वेशन स्मॉल ए, माइनस स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 बीटा ए कॉस के ए माइनस 2 बीटा बी, दैट इज इक्वेशन बी। ये आपने इक्वेशन जो है अभी पीछे डायटोमिक लैटिस के लिए निकाली है, स्मॉल एम और कैपिटल एम के लिए। व्हेन दीज कंडीशंस आर द when these conditions as the waves or radiations are moving along x-axis and optical radiation in ionic lattice is fall perpendicular, अगर आप ये फिगर में देख रहे हो perpendicular fall करिए, then इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग फील्ड एक्स परपेंडिकुलर, वो आप देखें रेडिएशंस के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करने लग गया इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर आप देख रहे हो फिगर में आप देख रहे हो ना कि ये ई जो है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपने फॉल करवाई है। Axis at any given instant of time all the atoms of the crystal experience the same electric, अब क्योंकि आपने रेडिएशन फॉल करवाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो वो एक जैसे सारे एटम्स के अंदर होगा। फॉर द नेबरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस बीइंग सब्जेक्टेड टू एग्जैक्टली इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के ऊपर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लगाएगा तो नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगाएगा, यानी कि क्योंकि चार्जेस सॉरी जो आइंस है वो डिफरेंट है ना, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो वो दोनों के ऊपर डिफरेंट तरह की फोर्स लगाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ सच अ फील्ड द फोर्स ऑन पॉजिटिव आइन इज, अब इस केस में जो आप फोर्स है वो कैसे लिखेंगे, F is equal to E into E naught into exponential iota omega t, that is equation 1, and on the negative sign वो पॉजिटिव के लिए लिखा, नेगेटिव के लिए आप क्या लिखेंगे माइनस साइन के साथ माइनस ई नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है k इज इक्वल टू 0 वैल्यू पे एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, दैट इज इक्वेशन 2। स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ द आइन है, ई नॉट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ द लाइट वेव, और ओमेगा क्या है लाइट फ्रिक्वेंसी है। अब अप्लाई कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ये आप कह रहे हैं कि अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रेजेंट करने लगे हैं, तो अब उसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये जो दो वैल्यूज आई हैं
ये आप कैपिटल एम के लिए स्मॉल एम के लिए ऐड कर दें। कैपिटल एम के लिए आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, स्मॉल एम के लिए नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव के लिए जो वैल्यू आप जो है वो दूसरी के साथ ऐड अप कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन सी जो है कैपिटल एम के लिए आ जाएगी और इक्वेशन डी जो है वो स्मॉल एम के लिए आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, एट टी इज इक्वल टू जीरो, अब वैल्यू आप ले रहे हैं कौन सा इंस्टेंट ले रहे हैं, टी इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास जो वेव वेक्टर है उस टाइम उसकी एब्जॉर्प्शन के वेव वेक्टर के लिए आप क्या वैल्यू ले रहे हैं, के इज इक्वल टू जीरो। सो अगर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की के इज इक्वल टू जीरो के लिए, टी इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास आ गई माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू बीटा बी माइनस टू बीटा ए प्लस ई small e into capital E naught, that is equation E, minus m omega square minus small m omega square b is equal to 2 beta a minus 2 beta b minus small e into electric field E, that is equation F। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें by m and small m on both sides respectively, dividing equation E and F by capital M and small m on both sides। अगले अब देखिए आपके पास इक्वेशन आ गई, तो आपने इक्वेशन E को डिवाइड किया कैपिटल M के साथ और इक्वेशन F को आपने डिवाइड किया स्मॉल m के साथ। आपके पास इक्वेशंस आ गई G और H वाली। अब देन माइनस ओमेगा स्क्वायर A इज इक्वल टू 2 बीटा ओवर m, आपने उसमें से कॉमन निकाल लिया, b माइनस ए प्लस ई नॉट ओवर m आ गया आपके पास। आपने क्या किया, इसी तरह जो है दूसरी जो इक्वेशन है एज के लिए उसमें से भी कॉमन निकाला, तो a माइनस बी आ गया आपके पास माइनस ई नॉट ओवर स्मॉल m के साथ। फिर आपने जो इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर b इज इक्वल टू माइनस टू बीटा ओवर स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, ऊपर वाली इक्वेशन की तरह बनाने के लिए इक्वेशन आई की तरह माइनस ई नॉट ओवर m। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन आई और जे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, आपको पता है सब्ट्रैक्ट जब करते हैं साइन चेंज होंगे, आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 2 बीटा इंटू बी माइनस ए इंटू 1 माइनस इंटू 1 ओवर m प्लस 1 ओवर m कैपिटल M प्लस ई नॉट इंटू 1 ओवर कैपिटल M प्लस 1 ओवर स्मॉल m। हमें पीछे से पता है कि 1 ओवर m प्लस 1 ओवर कैपिटल M इज इक्वल टू m प्लस m ओवर mm, और ये वैल्यू आपने पढ़ी हुई है 1 ओवर म्यू के साथ, जो कि रिड्यूस मैथ्स की वैल्यू है, ये क्लासिकल में भी आपने पढ़ा था। तो उसकी जगह पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू 1 ओवर m प्लस 1 ओवर m की जगह पर न्यू पुट कर दिया, तो आपके पास राइट हैंड साइड पर आ गया ई नॉट ओवर म्यू, और आपके पास इक्वेशन आ गई, अगर आप b माइनस ए को कॉमन करते हैं, b माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस टू बीटा इंटू 1 ओवर m प्लस 1 ओवर कैपिटल M इज इक्वल टू ई नॉट ओवर म्यू एज ओमेगा प्लस स्क्वायर, जो कि आप ऑप्टिकल ब्रांच के लिए ले रहे हैं, तो आप क्योंकि के इज इक्वल टू वैल्यू ले रहे हैं ऑप्टिकल ब्रांच के लिए ओमेगा प्लस की, तो आप ओमेगा नॉट स्क्वायर के लिए लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, आप के इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 बीटा इंटू 1 ओवर m प्लस 1 ओवर कैपिटल M, देन आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा b माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू इज इक्वल टू ई नॉट ओवर म्यू, और यहाँ से आपके पास डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू क्या आ गई, b माइनस ए, जो दो आपके एटम्स हैं डिफरेंट मैसेज वाले, is equal to e naught over mu divided by omega square minus omega naught square, that is equation k। अब हमने इसमें डिस्कस करना है कि जब आप रेडिएशन फॉल करवाते हैं दो डिफरेंट मैसेज के एटम के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और एक्स डायरेक्शन में होता है, तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो वो उसको क्या करवाता है, पोलराइज करवाता है। तो हमने अब डिस्कस करना है पोलराइजेशन। बी माइनस जो है, बी आपके पास एम्पलीट्यूड है स्मॉल एम मैस का, और कैपिटल एम जो एम्पलीट्यूड है वो आपका है कैपिटल एम मैस के लिए। तो डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, तो बी माइनस ए इज द डाइपोल डिस्प्लेसमेंट, ये टर्म इसके अंदर आ रही है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। दिस शोज दैट द लैटिस हैज बीन पोलराइज्ड, मींस दैट द वेव हैव बीन डिस्प्लेस्ड, देन द टोटल पोलराइजेशन। इससे क्या शो हो रहा है कि आपका डाइपोल, आपका जो डाइपोल था, दो डिफरेंट लाइंस थे ना, डाइपोल बन गया, तो उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया कितनी वैल्यू के साथ, b माइनस ए के साथ। तो उसके लिए आप क्या वैल्यू लिखोगे पोलराइजेशन के लिए, p इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। इफ वी कंसीडर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको पता है यूनिट वॉल्यूम 1 के इक्वल है, तो फिर आपके पास डाइपोल मोमेंट किसकी, पोलराइजेशन किसके इक्वल हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट के। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे नंबर ऑफ चार्जेस जो है आपके
पॉजिटिव और नेगेटिव इंटू बी माइनस ए। तो लिखेंगे P इज इक्वल टू एन ई इंटू बी माइनस ए। अब आप यहाँ पर क्या है, स्मॉल एन कैपिटल एन ई जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, एंड बी माइनस ए इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, आप जो है वो डिस्प्लेसमेंट की जो ऊपर से वैल्यू आई है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बी माइनस ए की जगह पर और रीअरेंज करेंगे, आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई म्यू होल डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच इज दैट चार्ज मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। चार्ज ज्यादातर पॉजिटिव और नेगेटिव में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमने पहले ही कहा था। तो क्या हो गया, पोलराइजेशन हुई। वाइल इन द अकॉस्टिकल ब्रांच चार्ज मूव इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि अकॉस्टिकल ब्रांच में आप एक जैसा मैथ कंसीडर कर रहे हैं, सॉरी एक जैसा चार्ज नहीं, हम उनकी मोशन एक जैसी ले रहे हैं, ठीक है, उनकी मोशन हम एक जैसी ले रहे हैं कॉस्टिकल ब्रांच में। और जो ऑप्टिकल ब्रांच है उसके अंदर दो डिफरेंट तरह के आइंस हैं, और इस वजह से जो है बेशक वो कैपिटल एम और स्मॉल एम है लेकिन डिफरेंट आइंस के साथ है, इसलिए उसके अंदर क्योंकि दो हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए हमने जो है वो पोलराइजेशन हो रही है। जबकि कॉस्टिकल ब्रांच में बेशक कैपिटल एम है स्मॉल एम है लेकिन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने जो है वो पोलराइज नहीं हो रहे। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन ई एंड एफ को करेंगे ऐड, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ऐड करने के बाद, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए एम प्लस बी इंटू स्मॉल एम इज इक्वल टू 2 बीटा इंटू ए प्लस बी माइनस 2 बीटा इंटू ए माइनस 2 बीटा इंटू ए प्लस बी। ये कैंसिल हो गया आपके राइट साइड की टर्म, इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आपने क्या किया, जो है ओमेगा, अगर क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी तो जीरो नहीं हो सकती ना, तो ओमेगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो अब जो है वो टर्म आपके पास रहेगी ए एम प्लस बी एम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से रीअरेंज किया तो बी की वैल्यू आ गई माइनस कैपिटल एम और स्मॉल एम इंटू ए, ये इक्वेशन एल होगी। और जो ये आ गई आपकी स्मॉल एम के लिए जो है एम्पलीट्यूड के लिए वैल्यू, और कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम और कैपिटल एम इंटू बी, दैट इज इक्वेशन एम, जो कि है कैपिटल मैस एम के लिए। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है एम वाली, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन एफ के अंदर। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 बीटा इंटू माइनस एम ओवर कैपिटल एम माइनस 2 बीटा बी माइनस ई नॉट। यहाँ से आपने आपका साइन आ गया, टर्म के साथ आ गया माइनस का साइन। अब 2 बीटा एम ओवर कैपिटल एम माइनस 2 बीटा बी में 2 बीटा कॉमन है, 2 बीटा बी यहाँ पर जो है ना सेकेंड लाइन में बी जो है यहाँ पर प्लेस है, इसमें से कॉमन किया तो माइनस 2 बीटा इंटू बी इंटू एम ओवर कैपिटल एम प्लस 1 माइनस ई नॉट। और यहाँ से आपके पास जो है वैल्यू आ गई। अगर आप दोनों साइड से माइनस साइन को कैंसिल कर दें तो आपके पास सिक्स लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा, माइनस मेगा स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 बीटा बी इंटू एम ओवर एम प्लस 1 इज प्लस ई नॉट। यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो है एलसीएम लेंगे टर्म का ऑन द फर्स्ट टर्म, राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है आपके पास वैल्यू क्या आ गई, मेगा स्क्वायर बी इज इक्वल टू 2 बीटा बी इंटू 1 ओवर एम प्लस 1 ओवर एम। सेकेंड टर्म में आपने क्या किया कि एम को मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड से दूसरी साइड में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके तो एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास 1 ओवर एम प्लस 1 ओवर एम की वैल्यू आ गई, इज प्लस ई नॉट ओवर एम आ गया आपके पास। यहाँ से रीअरेंज करेंगे ई नॉट ओवर स्मॉल एम इज इक्वल टू मेगा स्क्वायर बी माइनस 2 बीटा बी इंटू 1 ओवर एम प्लस 1 ओवर एम। यहाँ से आ गई आपके पास वैल्यू, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो माइनस ई नॉट ओवर एम इज इक्वल टू 2 बीटा बी इंटू 1 ओवर एम प्लस 1 ओवर एम माइनस ओमेगा स्क्वायर बी बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अगर बी कॉमन करे राइट हैंड साइड पर 2 बीटा इंटू 1 ओवर एम प्लस 1 ओवर एम माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाती है।
अब आपको पता है कि 2 बीटा इंटू 1/m प्लस 1/m जो है वो मेगा नॉट स्क्वायर जो कि थी ऑकोस्टिकल ब्रांच की वैल्यू मेगा प्लस स्क्वायर की, तो आपने अगर इसकी जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस ई नॉट ओवर एम इज इक्वल टू बी इंटू मेगा नॉट स्क्वायर माइनस मेगा स्क्वायर। यहाँ से बी के लिए अगर आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ई नॉट ओवर एम डिवाइडेड बाय मेगा नॉट स्क्वायर माइनस मेगा स्क्वायर। अब इस वैल्यू को जो है पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन एल इन इक्वेशन ई। अब इक्वेशन एल जो थी आपके पास प्रीवियसली उसको सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन ई के अंदर। इक्वेशन ई के अंदर जो आपकी प्रीवियस वाली इक्वेशन थी उसके अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करें, जो आपने शुरू में कंसीडर की थी उसमें सब्स्टिट्यूट करें। इसी तरह उसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने किया था सिमिलर पैटर्न के ऊपर। जैसे ऊपर वाली वैल्यू आई है स्मॉल एम के साथ, अब इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम के साथ, बी के लिए वैल्यू कैपिटल ए के लिए आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पर देखें सॉल्व करने के बाद कैपिटल ए इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ए की वैल्यू देखें और बी की वैल्यू भी देखें। क्या हो रहा है इसके अंदर जो बिलो टर्म है वो क्या है, एक जैसी है, ऊपर वाली भी एक जैसी है, सिर्फ साइन का फर्क है क्योंकि चार्जेस डिफरेंट थे, और मैसेज का फर्क है क्योंकि दो डिफरेंट मैस के थे एटम। अकॉर्डिंग टू दीज रिजल्ट्स व्हेन द इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लैटिस फॉर लार्जर वेवलेंथ ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशन और रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। आप इसमें देख रहे हो कि क्या हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है एक जैसा। दिस इंसिडेंट वेव this indicates that when the incident radiation with frequency omega uh, fall on the ionic diatomic material and when its frequency matches the frequency of optical branch, resonance takes place. अगर उसकी frequency match करेगी तो resonance होगा। And the electromagnetic radiations are re-radiated into the infrared region। तो फिर आपकी जो electromagnetic radiation है वो दोबारा इंफ्रारेड रीजन के अंदर री रेडिएट हो जाती है, दोबारा प्रोड्यूस हो जाती है। The vibration amplitude becomes very large and this large amplitude of the vibration amplitude becomes very large and this large amplitude of the charged ion at resonance gives rise to a strong radiation of electromagnetic energy to a resonance। क्योंकि resonance हो रहा है, enhance कर रहा है उसको, तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। The phenomena is observed in the ionic crystals। अब आपने कंसीडर ही ionic crystal किया है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो ये ऑब्जर्व भी फिनोमेना उनमें ही हो रहा है। A single strong peak in the optical reflection of the crystal occur in a फार इंफ्रारेड रीजन। वैल्यूज कौन सी है लैम्डा के लिए, 40 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक ऑफ द स्पेक्ट्रम। पीक्स आर ऑब्जर्व्ड इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द रेंज 40 टू 100 माइक्रोमीटर। और अगर आप NaCl के लिए लें, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 61 माइक्रोमीटर तक होती है तकरीबन। तो यह नीचे आप फिगर देख रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रही है 0 से लेके 100 तक, 20 का डिफरेंस है वर्टिकल लाइन में। हॉरिजॉन्टल पे आपके पास NaCl के लिए क्या वैल्यू है लैम्डा की, 61 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये आपके पास अकॉस्टिकल ब्रांच बन रही है किसके लिए, NaCl के लिए, जिसमें रेजोनेंस शो हो रहा है एक जैसी फ्रीक्वेंसी का। अब आपके पास क्योंकि एग्जांपल आ गई, आप ले रहे हैं आयनिक क्रिस्टल ले रहे हैं, तो अब आप उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे NaCl के लिए। फॉर एग्जांपल NaCl, दिस इज इंडिकेटेड बाय अ सिंगल स्ट्रॉन्ग पीक इन द ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन एट 61 माइक्रोमीटर। This compare well with the theoretical value of 46 माइक्रोमीटर that can be calculated as। आपके पास फोर्स की वैल्यू थी F इज इक्वल टू बीटा यू और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू थी 2 बीटा इंटू 1/m प्लस 1 कैपिटल एम। अगर आप Na के लिए लेंगे तो A की वैल्यू है 2.82 इंटू 10⁻⁻8 जो कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। कंप्रेसिबिलिटी और स्टिफनेस कांस्टेंट जो होगा NaCl के केस में वो क्या होगा, C इज इक्वल टू 4.18 इंटू 10⁻⁻12। अब पीछे हमने ये फॉर्मूला निकाला था बीटा इज इक्वल टू 3A/C। यहाँ पर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो बीटा की आ गई 2 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डाइंस और डाइंस पर सेकेंड आप कह सकते हैं। आपके पास आ गई ओमेगा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻4 इंटू 0.02857 प्लस 0.043478। और आपने जब इसको सॉल्व किया तो मेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻13 रेडियन पर सेकेंड आ गया।
The radiations radiated at resonance condition is called the रेजिड्यूअल. हमने कहा ना रीजनरेट हो जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर, तो उस क्या कहेंगे, जो रेडिएशंस रेडिएट करती हैं रेजोनेंस कंडीशन के अंदर, उनको आप क्या कहते हैं, रेजिडुअल रेडिएशन कहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जनरेट हुई है ना, एज अ रेजिडुअल जनरेट हुई है, तो इसलिए उन रेडिएशंस को आप क्या कहेंगे, रेजिडुअल रेडिएशंस कहेंगे. यहाँ तक अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो आप जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है वो प्रिपेयर होंगे. अगर आपको ये कहीं पे कोई क्वेश्चन है, आप कोई पूछने वाला, आप मेरे से इजीली. ये वैल्यू आपके पास आ गई है, मेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻13 रेडियन पर सेकेंड के साथ. मैंने अभी बताया कि इंफ्रारेड रीजन के अंदर क्योंकि री रेडिएट होती हैं, तो इस वजह से इनको आप क्या कहते हैं, रेजिडुअल रेडिएशंस कहते हैं, क्योंकि दोबारा से उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो यहाँ तक अगर मैंने पहले ही कहा कि यहाँ तक टॉपिक आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अभी टॉपिक चल रहा है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच.